what are we studying? आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? मैसेज में डाला था मैं. Jacob fled from Esau. Okay. Okay. One more question before I start. We just sang one song. कौन सा गाना था अभी? Nearer my God to thee. Okay. Now, what passage of the Bible it corresponds to? Jacob's dream. This exact passage that we are doing. You know, it is only today that it dawned on me. You know, I've sung this song so many times, but it had a different meaning. But when today, you know, I suddenly, my daughter actually put the song when I picked her up and was bringing her back home. Okay, then suddenly I realized, you know, the words are all exactly from the passage we are going to study. You know, sometimes movies or even Christian movies, no, they spoil everything that we know. They ruin us before we read God's word. Okay, which movie had this song? Titanic. Okay, very famous song, a very famous movie. It is based on a real incident which took place. Of course, in those days there were many God-fearing people. काफी सारे लोग थे जो परमेश्वर को जानते थे. Okay, so in this ship there were many believers also. So when Titanic started sinking, the band that was there on the ship played this song, Nearer My God to Thee, because people at that time, as it was sinking, they didn't even have enough lifeboats, and there was sea, ocean all around. There was a storm, and also there was what? Icebergs. It was very cold. Even you can't survive in the water. And slowly it was sinking, and finally went underneath. Okay. So at the last moment, they sang this song, Nearer My God to Thee. Okay. So many times we are people like that. We remember God only when we are dying or sinking. When we think it is all finished. Okay. But the base on which the song is written, you know, it is based on Jacob's life. Jacob's life was just beginning, actually. It is after this, you know, that he rises from ruin to become what he ought to become. Okay. It was not his end, though he would have also felt like, you know, it was miserable. Okay. So today's passage we are going to learn carefully. Every week we are going to learn carefully. Every time we pick up the Bible and read, we must read it carefully because God has something to say to each one of us. Every time we pick up the Bible and read, He has something in His word for us. Don't read it like medicine. है ना, दवा जैसा नहीं पढ़ना चाहिए. Read quickly. College जाना है, school जाना है, काम पे जाना है. You want to go to work. So just before that, you know, in a hurry, just like medicine, you won't get anything. Don't have to read a chapter or the whole book. You can read a few verses. Just meditate on it and God will speak to you. Okay. So we are going to go back to this passage. We will read it first. Hopefully, if we get time, we'll sing the song again in the end. Which chapter we should be on? Jacob fleeing is on 28. Okay, let me project the PPT.
Okay, I didn't get time to correct my PowerPoint. Okay, so if there are mistakes, you will have to adjust with it because I was working on it till you all arrived. Okay, so it may not be as illustrated also as I wanted it to be. So we'll read Genesis 28, 10 to 22. We'll read one verse each. We'll go around in a circle till we finish it. You can read it in whatever version you are having in your hand or language in which you are having. But please read loudly. Okay, repeat. Please read loudly. Please read with emotion. इमोशन का मतलब क्या है? हाँ, दिल, भावुक. ओके, दिल का गहराई से, from the depth of your heart. God's word is not dead. That is what we will see today. God's word is not dead. It is alive. And so we should show life when we are reading it. No? We should not do. Okay, we should not ramble. We should honor God by reading it the way it is written. Okay, with emotions. You know why God's word has got so many stories? Stories in the sense, people's life. It is not only teaching, no? Thou shalt not, thou shalt not. God could have written the entire book that way. Chota ho jata tha kitab. Very small book we would have had to read them. But God gave lives because lives were filled with feelings, emotions, suspense, tension, okay, grief, joy, okay, and everything is recorded in the Bible for us because we go through those emotions in life, isn't it? Or we don't go through it. जाता है अपने को, दर्द होता है कभी कभी, हंसी भी आता है, खुशी भी आता है. Okay, so Bible. Okay, so we will read it with emotion, and every time you read the Bible, no, read it because it is a life-giving word. परमेश्वर का वचन क्या है? जीवन देने वाला शब्द है ना, उसमें परमेश्वर का शब्द है. Okay, so read it because it gives you life. It gives you inspiration. When David said, no, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. These are people who went through big traumas in life. And they wrote in such a way that it beautifully illustrates their feelings. तो परमेश्वर का वचन में हमारा जीवन में जो भी संकट या मुसीबतें आता है, उसके साथ परमेश्वर का वचन में बहुत सारा ऐसा घटना है जिसके साथ हम तुलना कर सकते हैं. ओके, वी कैन रिलेट टू इट. हम उसके साथ हमारा जोड़ सकता है, हमारा भावनाओं को भी जोड़ सकता है. ओके, बिकॉज people went through situations like us before. हम पहला नहीं है इस दुनिया में जो संकट या मुसीबत या मुश्किल में गिरे हुए हैं. सभी लोग हैं इस दुनिया में जो इसी रास्ते से चल रहा है. ओके, एंड परमेश्वर का वचन में हम अभी समझो ये व्यक्ति का रिया को देखता है तो वो आज बहुत स्माइल दे रहा है. ओके, तो हमें उसका दिल में क्या है कुछ मालूम नहीं, कितना प्रेशर है, कितना टेंशन है, कुछ नहीं. वो आगे स्माइल कर रहा है, स्माइल मालूम है. लेकिन परमेश्वर का वचन में ऐसा है, लोगों का शुरुआत और लोगों का अंत दोनों देख सकता है. यहाँ पे हमको आगे नहीं दिखता है इसको क्या होने वाला है, पीछे नहीं दिखता है वो क्या गुजर के आया. लेकिन परमेश्वर का वचन में हम पीछे भी देख सकते हैं, आगे भी दे सकते हैं. और उन लोग जो निर्णय लिया वहां पे, what decisions they took in life at that point of time and how it affected them, और उसका परिणाम क्या था, उनका जीवन में जो संकट आया, मुसीबत आया और उसमें उन लोग क्या निर्णय लिया और उसका परिणाम क्या हुआ, वो भी हम देख सकते हैं. एक भी व्यक्ति को देख के हमको समझ में नहीं आएगा. लेकिन परमेश्वर का वचन में लोगों का जीवन देख के हमें समझ में आएगा. ओके, so we will be careful as we read. Read with emotion, read loudly, क्योंकि लोग ऑनलाइन भी है, उनको भी सुनना है. And those who are online, you read it in your Bible as well. So read it
We will start with Sister Deepti and go ulta today. In chapter 28, verse 10. Now Jacob went out from Beersheba and went towards Haran. When he reached a certain place, he sought for the night, because the sun had set. Taking one of the stores there, he put it under his head and lay down his and the Lord will not will about I am the Lord God of Abraham, the father and the God of the land on which you stand, I will give to you and your descendants. If you shall be and the dust of you, and thou shalt stir the cross with it, and indeed it is thy will that all the families of earth will. I am with you and will watch over you wherever you go, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised. Then Jacob awoke from his sleep and said, surely the Lord is in this place, and I did not know it. He was afraid and said, how awesome is this place? This is none other than house of God. This is the gate of heaven. Yeah, भैया. उसमें उस बाग का नाम बेथेल था, पर उस नगर का नाम पहले नहीं था. Then Jacob made a vow, saying, if God will be with me, keep me alive, and give me bread to eat, things to put on. And the soul beside him said, shall be God's house, and of all that is there, I will rejoice with him. Okay, I hope we are able to finish. मुझे ऐसा इच्छा है कि आज जो शुरू करता है वो खत्म करेंगे. बहुत महत्वपूर्ण पैसेज है. ओके, जो जेकब का यात्रा, जेकब ट्रैवल begins at a place called Beersheba. Okay, so obviously they were staying there. Okay, what you can see on the screen is Beersheba today. Beersheba जो जगह है आज एक मॉडर्न सिटी है. ओके, इट इज अ वेरी मॉडर्न सिटी. उसको क्या बोलते हैं, एक आधुनिक शहर है आज के जमाने में. लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं दिखता था. ओके, हम थोड़ा देखेंगे भी कैसा दिखता था, बिकॉज यहाँ से ही वो यात्रा शुरू होता है. ओके, और ये यात्रा जब भी हम याकूब के साथ हम जाएंगे ना, when we are traveling with Jacob in his journey, okay, we will not finish all of it today because his journey goes on beyond this passage. Okay, we will be also traveling with him. We will put ourselves in his shoes. We will feel as Jacob felt. We will ask the question, am I like Jacob? Am I going through a situation like Jacob? हम भी इस यात्रा में याकूब के साथ जुड़ जाएंगे और उसके जूते पहनेंगे. वो जो मुसीबतें, तकलीफें और जो उसके मन में जो प्रश्न सब निकल रहा था, वो सब हम भी पूछेंगे कि हमारा जीवन में भी यही परिस्थिति है क्या. तो हम उसके साथ जब भी हम उसके जीवन के साथ जब भी हम तुलना करते हैं, तो हमें भी समझ में आएगा कि हमारा जीवन में हमको क्या करना है. बिकॉज गॉड is a God of peace and joy and victory, and we can see that. Okay, so बीरशेबा, ये जो जगह दिखता है, ये कुआं जो दिखता है, वो इब्राहिम ने बनाया था. आज के जमाने में भी है. ओके, द वेल दैट Abraham dug is still there today. Okay, you can see it in Israel. Abraham made a covenant with Abimelech with 7 eve lamps. उसने अबीमेलेक के साथ 7 बच्चियों के
जरिए एक वाचा बांधी. Okay, so Beersheba, the name comes after this covenant was made. Beer means well. Beer का मतलब कुआ, and Sheva means 7. Okay, because he gave 7 lambs. Okay, so it is called as 7 well of oath or well of 7. Okay, it is बीरशेबा का अर्थ है 7 कुआ या शपथ का कुआ, क्योंकि यहाँ इब्राहिम और अबीमेलेक दोनों एक व्हाट इज इट करार किया, एग्रीमेंट किया उन लोग, ताकि उनके बीच में कुछ युद्ध नहीं होना चाहिए. इब्राहिम कौन था? Who was Abraham? Abraham was grandfather of Jacob. अभी हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसका दादा था, उसका पिताजी इसहाक था, जिसके बारे में थोड़ा गया मीटिंग में देखा था, और उसका पिताजी इब्राहिम था. तो उन्होंने इस कुएं को खोदा था और उस कुएं के बाजू में ही रह के उन लोग ये कवेनेंट किया था. ओके, इब्राहिम एक पेड़ भी यहाँ पे लगाया. इन दोस डेज पीपल यूज्ड टू डू ऑल दैट, ओके, सो दैट they would remember some things that took place. Okay, there is no harm in you also doing something to remember something significant that God has done in your life. आपके जीवन में भी परमेश्वर ने कुछ किया तो उसके लिए आप कुछ चिन्ह बना के आप याद रखेंगे, तो उसमें कुछ गलत नहीं है. लेकिन वो चिन्ह को you should not worship that. वर्शिप को क्या बोलता है? पूजा या उपासना नहीं करना चाहिए. जो चिन्ह है वो महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन जो घटना है और परमेश्वर ने जो कार्य किया वो बहुत याद रखने का जैसा चीज होता है. ओके, सो वी शुड, देयर इज नो प्रॉब्लम इन रिमेम्बरिंग इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस इन आवर लाइफ. ओके, रिमेम्बरिंग इट एंड we can go ahead like that. He called on the name of the Lord, eternal God. परमेश्वर को उसने यहाँ यहोवा सनातन परमेश्वर का नाम से पुकारा. ओके, this is one place where God is called as eternal God. You understand? God is called by many names. परमेश्वर को काफी सारा नामों से बुलाया जाता है परमेश्वर का वचन में. परमेश्वर, eternal God is a name that is given here. Okay, सनातन का परमेश्वर, ये नाम यहाँ पे दिया है. ओके, इब्राहिम सेटल्ड हियर. इब्राहिम यहाँ पे उसका बस गया, वो बस गया इस जगह में. ओके, he settled there because there was water, he had cattle, so he could feed it and provide for it. So when in his old age he settled around बीरशेबा. हाँ, तो हम लोग बीरशेबा के बारे में देखेंगे तो ही अपने को मालूम पड़ेगा ना कि जेकब को कैसा लगा बीरशेबा छोड़ के जाने का. When I left Bombay, मैं मुंबई छोड़ के आया तो मुझे भी रोने जैसा लगा. I don't know whether my wife felt that way because she was not born there. But in Bombay, in Mulund, I knew every road, every tree. I had distributed tracts in every street and even gone to every factory in Mulund and given tracts to watchmen and whoever we could access. Okay, that was a place where we had worked hard and met so many people. We had been abused and appreciated दोनों. हाँ, मुलुंड छोड़ के जाने का टाइम जब भी मैं अहमदाबाद आया तभी मुझे भी काफी सारा मेरा दिल में भावनाएं आया. ओके, याद, क्योंकि वो जगह के साथ मेरा बहुत प्यार था. मेरा जन्म वहां पे हुआ था. उस जगह का हर गली मुझे मालूम था. लोगों के साथ परमेश्वर का वचन बांटा था और गालियां भी सुना था और परमेश्वर के लिए काम भी बहुत, सेवा भी वहां पे बहुत किया था. ओके, so for me leaving that place was not at all a happy moment. Okay, Jacob also would have not found it very easy. This was a place where Abraham settled. Isaac also moved here many times. Okay, Isaac stayed here too during a famine. Okay, though Isaac moved to another place, but he came here when there was a famine because it was a familiar place.
यहाँ पे एक दुष्काल हुआ, तभी वो इस जगह में इसहाक, जेकब का पिताजी, यही जगह पे आया था. ही टू मेड एन एग्रीमेंट विद अबीमेलेक. वही राजा जिसके साथ इब्राहिम ने वाचा बनाया था. वादा बोलते हैं क्या बोलते हैं, वाचा किया था, करार बोलो. हाँ करार किया था. उसी राजा के साथ इसहाक भी आके वाचा किया. ओके, करार किया. क्योंकि मेरे को हिंदी जरा पढ़ने को टाइम लगता है, तो आई एम नॉट एबल टू रीड दो इट इज देयर नियर मी. ओके, गॉड अपीयर्ड टू आइजक एंड रिन्यूड हिज प्रॉमिस मेड टू इब्राहिम. यहाँ पे इसहाक के साथ परमेश्वर ने जो इब्राहिम का साथ वाचा किया था, ओके, कवेनेंट, वो सेम इसहाक के साथ भी किया. Whatever he promised Abraham, he promised Isaac in this place, in Beersheba. Okay, so Beersheba is a place where God was active, and very few people on earth were knowing and calling on the name of the Lord. परमेश्वर को पुकारने वाले लोग बहुत कम थे दुनिया में तभी, और ये लोग बीरशेबा के नजदीक ही रह रहे थे. ओके, ये जो तस्वीर दिखता है ना पीछे, वो बीरशेबा शहर का आर्कियोलॉजी को क्या बोलता है, खुदाई करके निकाला है, जूना प्राचीन जमाने का घर और उनका तभी का शहर को. ओके, तो आज भी हम देख सकते हैं. तो ये एक मिथ नहीं है. मिथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, कहानी नहीं है. ये कहानी नहीं है, काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सच्चा घटना है. ओके, मैं जो चित्र दिखा रहा हूँ उसी कारण से, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट भी बाइबल स्टडी कर सकते हैं. ये बैकग्राउंड में जो चल रहा है वो आपको देखने के लिए है. शायद आप देखा होगा, शायद नहीं देखा होगा. ओके, गॉड अपीयर्ड टू आइजक एंड रिन्यूड हिज प्रॉमिस मेड टू इब्राहिम हियर. ओके, इजराइल का बाउंड्री. ओके, यहाँ पे ही बीरशेबा का आगे रेगिस्तान है. ओके, बीरशेबा रेगिस्तान बोलता है. इट इज कॉल्ड द विल्डरनेस ऑफ बीरशेबा, एंड इट इज हियर दैट गॉड अपीयर्ड टू Elijah, Hagar. Okay, so this was a place where many people met God. जब भी मेरे को मुल्लुंड का याद आता है, जहाँ मेरा जन्म हुआ था और मैं रहा वहां पे, मेरा 45 साल बिताया वहां पे, मैंने अनेक लोगों को परमेश्वर को स्वीकार करने का देखा उसी जगह पे. Many people encountered God in Mulund. In the same way, Beersheba was a place where people were encountering the living God. सच्चा जीवित परमेश्वर को अनेक लोग का मेल हो रहा था, भेंट हो रहा था इस जगह पे. ओके, सैमुअल के 2 बेटे. This is the place where Samuel's 2 sons, they did bad things. Okay, Samuel was good, but his sons were bad, and this is the place where they did all their nuisance. Because of that, Israel asked for a king. Instead of God leading through the people he chose from time to time, Israel asked for a king. Okay, इसी जगह पे सामुएल का 2 लड़के लोग परमेश्वर का नाम को भी खराब कर दिया पूरी तरह जीने से. ओके, सैमुअल वॉज अ प्रॉफिट. प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, नबी. सामुएल एक नबी था. ओके, भविष्यवाणी, भविष्य दत्ता था. ओके, लेकिन उसके 2 बेटे बहुत खराब थे. उनके नाम के, उनके काम और कार्य से परमेश्वर का नाम भी बदनाम हुआ, और वो भी यही जगह पे हुआ. इसीलिए इजराइल, हमारे लिए भी, हमारा देश में भी एक राजा होना चाहिए, ऐसा पूछा सैमुएल को. Israel's boundary, wherever it is, many places. Okay, I have not marked any references because in many places you will find from Dan to Beersheba. Okay, so Beersheba was significant. आप परमेश्वर का वचन, चुना नियम पढ़ेंगे तो काफी सारा जगह में इजराइल का सीमा डैन से लेकर बीरशेबा तक ऐसा बताया गया है. ओके, डैन उत्तर ना, नॉर्थ,
और बीरशेबा दक्षिण इलाके में था। तो ये दोनों उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ एंड साउथ बाउंड्रीज ऑफ इजराइल, whenever the nation of Israel is mentioned, it is mentioned. So sometimes it will be just said Dan to Beersheba. कभी कभी परमेश्वर का वचन में सिर्फ लिखा रहेगा डैन से बीरशेबा, तो आपको मालूम पड़ना चाहिए कि इजराइल का देश के बारे में बताया गया है यहाँ पे। ओके, दैट इज द वेल स्टिल हैविंग वाटर 29 feet deep. There is another well from the same time which is 65 feet deep. 65 feet यानी 7 मंजिले का, यानी यहाँ पे जो कुआ है उस जमाने का वो 30 फुट को क्या बोलता है, फुट ही बोलता है हिंदी में, हो ही नहीं सकता है सर। ठीक है ठीक है, एक स्केल का पट्टी जो होता है वो 1 फुट होता है, और वैसा 30 फुट यानी 30 मंजिले का बिल्डिंग, या 60 फुट यानी 6-7 मंजिले का इमारत के जितना ऊंचाई है उतना गहराई था ये कुओं को। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वेल्स दैट वर देयर स्टिल हैविंग वाटर। ओके, तो याकूब जब भी उसका जर्नी यानी यात्रा शुरू किया तो उसके सामने इजराइल ऐसा देखता है ना। आप कल्पना नहीं करोगे तो आपको लगेगा जैसा कि वो पैदल गया, जैसा हम यहाँ से मार्केट जाके आ रहे हैं ना वैसा गया, आपको लगेगा ही नहीं उसको क्या मुसीबत आया क्या था। बीरशेबा में था, वो सबसे दक्षिण जगह में था। बीरशेबा वॉज इन द साउथ and he was going to go beyond Dan. He was going to go back to Haran. Okay, Haran कौन सा जगह है? हाँ, सीरिया में। सीरिया से भी उत्तर जगह में, अभी तुर्की में। ओके, इट इज फार। ओके, एंड द टेरेन वाज लाइक दिस। वो जगह ऐसा था, कितना मुश्किल उसको था वो आप देखिएगा तो ये आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि कुछ रास्ता था या कुछ तो था जहां से जा सकता है। 1000 किलोमीटर दूर पैदल गया, यहां से हैदराबाद जैसा, या तो बंबई जाके आना पैदल, दिल्ली तो 1100 किलोमीटर जैसा है। ओके, तो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ डिस्टेंसेस ही हैड, और वो पैदल निकला। ओके, so this is the, let me remove my face, why is it here? Okay, so you can see the map. ये जो लाल रेश है ना वो जेकब का यात्रा का ये है। वो शुरू किया यहाँ से बीरशेबा से, और हम लोग जो आज परमेश्वर का वचन से पढ़ा वो सब घटना यहाँ पे हुआ बेथेल में। उसके बाद में उसको यहाँ तक जाना था। वो एक दिन या 1-2 दिन में यहाँ पहुंच गया। परमेश्वर का वचन पढ़ेगा तो ऐसा लगता है कि एक ही दिन में आ गया, लेकिन वहां पे ऐसा लिखा नहीं है कि वही दिन था, लेकिन ऐसा लिखा है कि शाम को रात हो रहा था तभी थक के वो, तो वो जगह के बारे में बाद में यहाँ तक गया। शायद उसको 1.5-2 महीना लगा रहेगा पैदल कंटिन्यूअस, हर दिन 15-20 किलोमीटर वो चलते गया। तो ओके, सो दैट वाज हाउ जेकब्स जर्नी वाज। जेकब वॉज लीविंग हिज फेमिलियर प्लेसेस, उसका घर छोड़ के गया। हम लोग सब भी वैसे ही है ना, यहाँ पे कोई भी इधर जन्म हुआ एक ही है ना, यहाँ पे ओनली वन निवासी इज देयर। वो भी उधर सो रहा है कि खेल रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। ओके, वो एक ही है जो अहमदाबाद में जन्म लिया, बाकी सब हम लोग यहाँ वहां से आए हैं। ओके, so Jacob was leaving his home and he was taking this journey. वो हरान गया, हरान में अभी भी है, जो उस समय का है, इब्राहिम का समय का घर वो टाइप का है, यही टाइप का घर है थे। ओके, हरान जो जगह था, इब्राहिम हैड कम टू हरान फ्रॉम मैसिडोनिया, पूर्व में से आने का टाइम। तेरा इब्राहिम यहाँ पे सेटल हुए,
तेरह का मृत्यु के बाद हरान से उन लोग निकला। तो अभी आप एक देख सकते हैं, इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया था, उसको बोला कि केनन में जाओ। मैं परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और बोला कि मैं जहां पे बोल रहा हूं वहां पे जाना है, और उसको उसका गांव घर छोड़ के आने के लिए बोला। तो ये हरान आया, बाद में वो बीरशेबा तक आया। अभी जेकब कैसा जा रहा है? उल्टा रास्ता। जहां से इब्राहिम निकला था, यही जगह में वो बहुत साल निकाला था, क्योंकि उसका पिताजी का उम्र बहुत था, इसके लिए वहां पे पिताजी का मृत्यु होने तक वहां पे इब्राहिम रुका था। ओके, इब्राहिम स्टेड देयर टिल हिज फादर्स डेथ, बट आफ्टर दैट ही केम। गॉड हैड कॉल्ड इब्राहिम हियर। नाउ व्हाट इज जेकब डूइंग? गोइंग बैक। है ना? कभी कभी हमारे घरों में भी ऐसा रहेगा, हमारे पिताजी माता मूर्ति पूजा या कुछ बाकी हमारे तरफ से लेकिन या अविश्वासी जीवन में रहने के बाद परमेश्वर में विश्वास किया रहेगा, रास्ता बदल के परमेश्वर का पीछा किया रहेगा। और ऐसे माता पिताओं को भी कभी कभी बच्चे रहते हैं जो उल्टा डायरेक्शन में चलते हैं। यू सी, I was also like that. Many of you will find your lives are like that. You may be thinking you are going in the right direction. आपका दिमाग में लगता रहेगा कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं, लेकिन बहुत बार आप लोग गलत दिशा में जाते होंगे। ओके, इट वॉज अ रिवर्स जर्नी। जेनेसिस 28:11। When he reached a certain place, he stopped for the night because the sun had set. Taking one of the stones there, he put it under his head and lay down to sleep. We are going to look at this verse in detail. हम इस वचन को धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। पूरा खत्म नहीं हुआ तो अगला हफ्ता हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हर हफ्ता हमको उस हफ्ते का रोटी मिल जाएगा। बराबर? सोचिए, याकूब का उम्र क्या था? आप संडे स्कूल में पढ़ा रहेगा कहीं पे, तो अब आपको लगेगा कि जेकब एक छोटा बच्चा था। मेरा जिंदगी में भी मैंने बहुत यही गलत फहमी रखा कि जेकब बहुत छोटा व्यक्ति था, उसका उम्र से बहुत छोटा था, एक तरुण लड़का था करके नहीं था। ईसाऊ का शादी कभी हुआ? कितने उम्र में? 40 years. Very good. Okay. Esau married at the age of 40. So when Esau was 40, what was Jacob say? 40. है ना? जुड़वे क्या बोलते हैं उनको? ट्विंस। ट्विंस तो हिंदी में, मेरे को इंग्लिश वर्ड मत बोलो। जुड़वा बच्चे थे। ओके, तो ईसौ 40 साल का था, तो याकूब भी 40 साल का था, और ये उसके बाद में हो रहा है ये घटना। ओके, तो he was not small. When I came to Ahmedabad, what was my age? 42. ओके, तो हम लोग भी वही टाइम में ऐसे ही समय में यात्रा करके आए। बहुत लोग, आप लोग भी ऐसे ही उम्र में यहाँ वहां भटका रहेगा दूसरा शहर में। ओके, तो Jacob also was not. I'm not telling the age. I have yet to study because there are some who say he is 70 plus. Okay, I don't know, so I don't want to comment. Okay, but he was definitely more than 40. That much we can be sure. तो ही अपने को मालूम पड़ेगा ना, तो उसका क्या कठिनाई था। उसका माता पिता उसको क्या दिया रहेगा ले जाने के लिए ये यात्रा में? आप सोचा है कभी? परमेश्वर का वचन ना घाई घाई में पढ़ने का नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज फिल्ड विद इमोशन। एक घटना हुआ था उनका घर में, है ना? तो जो पिताजी का आशीर्वाद जो ईसौ को जाने का था, वो याकूब के पास गया, क्योंकि याकूब और उसका मम्मी रेचल दोनों मिलके उनका पिताजी इसहाक को क्या किया? धोखा दिया।
हाँ, उनको दिखता नहीं था, तो उसको धोखा देके आशीर्वाद याकूब के पास आ गया। लेकिन परमेश्वर ने तो बोला था याकूब को ही मिलेगा, तो उसको मिलता था, वो धोखा नहीं देता था तो भी उसको ही मिलता था। लेकिन वो वैसा ही व्यक्ति था याकूब भी, और उसका मम्मी भी वैसे ही रास्ते में उसको लाया था। तो ये धोखा होने के बाद ईसौ इसको मारने के लिए तैयार हो गया, जान से मारने के लिए। ईसौ वॉज रेडी टू किल हिम। Okay, so now Jacob was running away from all that. Okay, but Jacob was his mother's favorite. Esau was his father's favorite. But now, because everything was messy in the house, both Isaac, Isaac और रेबेका दोनों मिलके तय किया कि याकूब को भेज देने के लिए। Okay, so they sent him off. तो माता पिता उसको क्या दिया रहेगा? आप याद रखना, 1000 किलोमीटर जाना है उसको। उसका मम्मी वहां से ही आया है, मम्मी का घर वहां पे ही था, तो उसका घर में ही भेज रहा है। उस जहाँ पे उसका भाई और उनका बाकी परिवार वहां पे है, वहां पे ही भेज रहा है। तो क्या देख के भेजा रहेगा? हाँ, प्रार्थना और आशीर्वाद। आप भेजेगा आपका बेटी को प्रार्थना और आशीर्वाद से सिर्फ 1000 किलोमीटर दूर? ओके, लेकिन शायद शायद याकूब का परिस्थिति वही था, प्रार्थना और आशीर्वाद के सिवा उसके हाथ में ज्यादा कुछ लेके नहीं गया रहेगा। शायद थोड़ा खाना बनाया रहेगा, क्योंकि ये सब घाई घाई में हो रहा है। ओके, ईसौ मारने का तैयार हो रहा है, तो इसीलिए जल्दबाज में उन लोग उसको भेज रहा है, तो ज्यादा तैयारी भी नहीं किया रहेगा। परमेश्वर का वचन में इसी जगह में 3 जगह अ सर्टन प्लेस करके लिखा है। उस जगह को एक नाम था लूज, बिकॉज याकूब उसको बेथेल करके नाम देता है, लेकिन परमेश्वर का वचन में जगह के बारे में लिखा है तो अ सर्टन प्लेस सिर्फ लिखा है। ओके, एक खास जगह। हिब्रू में हम मकोम करके शब्द है, तो स्पेशल प्लेस, एक खास जगह था। ओके, जेकब डिडंट प्लान टू बी हियर। याकूब यहाँ पे आने का कुछ भी डिसीजन, व्हाट यू से फॉर दैट, योजना बना के इस जगह में नहीं आया। सिर्फ उसको अभी हरान जाने का था, तो चलते चलते थक गया, रात हो गया, इसीलिए उस जगह पे रुका, नहीं तो उसका कुछ प्लानिंग नहीं था। लेकिन हम जब भी देखेगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जगह और महत्वपूर्ण चीजें उसको इस जगह में होता है। ओके, इस जगह में क्यों था वो, इस मुसीबत में क्यों था? परमेश्वर का इच्छा था कि वो वहां पे आना चाहिए, लेकिन उसका जीवन में क्या हुआ था अभी अपन देखा था ना, ईसौ का धोखा देके उसने सब कुछ छीन लिया था। मुसीबत में था क्योंकि उसका जीवन भी वैसे ही था। आप समझा ना? तो उसका भाई का गुस्से से दौड़ रहा था वो। वहां पे क्या देखते हैं आप? अंधेरा, रात आ गया था, है ना? आप एक नया जगह में जाएगा। अभी हम अहमदाबाद में बाहर निकलते हैं रात को, लेकिन जब भी नया नया आया था ना, रात को निकलने के लिए भी डर लगता था। कुछ दूर घर के नीचे जाता था, लेकिन बहुत दूर नहीं जाता था। कोई भी नया जगह में आप जाएगा तो आप संभाल के जाएगा। यू विल बी वेरी केयरफुल वेर यू गो इन अ न्यू प्लेस। ओके, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ फियर्स, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट प्लेस। So Jacob also must have had those feelings. He was not here whether there are wild animals, whether there are robbers who will come, whether somebody will kill him, what if he falls sick, है ना? उसका मन में काफी सारा भय आया रहेगा। Darkness around him matched the darkness of his heart, है ना? बाहर का जो अंधेरा था, उसके दिल के अंदर जो अंधेरा था, दोनों एक तरीका था। बाहर भी अंधेरा, अंदर भी अंधेरा।
वो भी भाग रहा था खुद के कार्य के कारण ही, नहीं तो अच्छी तरह से वो और उसका भाई जीते थे तो कुछ भागने का जरूरत था नहीं था, है ना? दे कुड हैव बीन टुगेदर. What must have gone through Jacob's mind when he lay down to sleep? यहाँ पे सोने के लिए हाँ तैयार किया, तैयार हो रहा था वो, तो उसका मन में क्या भावनाएं आया रहेगा, क्या सोच आया रहेगा? बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, समय बीत रहा है. आगे क्या होगा? देखा, अभी उसका इंग्लिश को मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ. थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया, मैं पास हो जाएगा थोड़ा दिन. हाँ बोलो. और व्हाट एल्स शुड हैव पुट योरसेल्फ इन हिज शू, उसके जूते में आप जाइए तो आपको कैसा लगा रहेगा? व्हेन विल आई गो बैक, ये सब कब खत्म होगा? एक बुरा ड्रीम को क्या बोलता है? सपना. एक बुरा सपना जैसा अभी बीत रहा है मेरा जीवन. हाँ, ये कब खत्म होगा? और कब मैं मेरा घर, मेरा पापा मम्मी और सबके साथ जा सकता है, जो चीज मैं सोचता था. और अभी मैं इधर देखेगा नहीं. हाँ, क्या ईसो पीछे आ गया तो दैट ऑल्सो वुड हैव बीन देयर. घर में थोड़ा सेफ लगता था क्योंकि पापा मम्मी भी था वहां पे, है ना? एट होम ही वाज सेफर. नाउ ही वुड थिंक इफ ईसो कम्स हियर. ओके, और दोनों में क्या फर्क था? ईसो हंटर था, वो दूर से भी निशान लगा सकता था. हाँ, और उसको अच्छा लगता था ऐसा बाहर घूमने के लिए. रात में भी वो निकलता रहेगा शिकार करने के लिए. लेकिन जेकब कैसा व्यक्ति था? घर के बाहर निकला नहीं था वो, घर के अंदर ही था, मम्मी के साथ ही रहता था. और वो सब तंबू जो था उनका, जितना भी तंबू था, एक तंबू से दूसरा तंबू, घर दूर गया ही नहीं था, ऐसा व्यक्ति था. और वो अभी रास्ते में था, और जो जगह उसको मालूम नहीं वैसा जगह पे था. ओके, ही वॉज अ डिस्टर्ब्ड पर्सन. नींद आएगा आपको? मेरे को तो ये हिंदी परीक्षा जो भी देने का था, उस रात मुझे नींद ही नहीं आया था 12वीं कक्षा में. आई वेंट स्लेप्ट गॉट अप, देन आई सेड जाने दो अभी पढ़ते हैं, है ना? पास हो गया लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही. लेकिन मेरे को उस दिन नींद नहीं आया. ओके, तो जेकब को नींद आया, इतना बुरा सोच आने के बावजूद उसको नींद आया. क्यों आया? बहुत थक गया था वो. ये उसका उसका लायक यात्रा ही नहीं था. ही इज नॉट द काइंड हु कैन ट्रैवल. उसको राजधानी एक्सप्रेस था तो वो जाता था, है ना? गाड़ी में बैठ के एसी में जाना है तो वो आसान से जाता था, लेकिन दोबारा रिटर्न टिकट के साथ जाता था. ओके, ही वाज नॉट द टाइप हु गो लाइक एन एडवेंचरर, है ना? डार्क थॉट्स, मेमोरीज याद आया रहेगा. क्यों ये सब हो गया उसको याद आया रहेगा. मैंने भी क्यों किया ये सब ईसौ को, है ना? बहुत बार हम लोग हमारा ही कैदी रहते हैं, है ना? हम नहीं चाहते हैं कि ये चीज करना चाहिए, बुरा रहना चाहिए किसी के साथ. हम नहीं चाहते, लेकिन हो जाता है. कोई सामने आ गया, कुछ दो शब्द बोल दिया. वी आर कैप्टिव प्रिजनर ऑफ आवर ओन सेल्फ. हम लोग हमारा ही कैद है ना? कैदी है. उसने उसका भाई का बर्थ राइट, जन सिद्ध अधिकार, और उसका सब आशीर्वाद, ऑल इज ब्लेसिंग्स, उसने छीन लिया था. दिखाने के लिए क्या है हाथ में? कुछ नहीं, है ना? हम जब भी कुछ, आप संपत्ति के पीछे भी जाओ, बाद में सब भाग जाएगा, है ना? यू विल नॉट गेट. व्हेन गॉड गिव्स इट विल बी योर. जेकब जब भी जा रहा था, वो लिखा भी है कि मेरे हाथ में एक लकड़ी, स्टाफ को हिंदी में क्या बोलता है? छड़ी. सिर्फ एक छड़ी था चलने के लिए, मदद करने के लिए, है ना? लेकिन आने के समय 12 बच्चे थे, एक लड़की भी था. बेंजामिन का जन्म बाद में हुआ. 11 लड़के और एक बेटी था, और बहुत संपत्ति के साथ वो दोबारा आया, है ना?
तो जाने के समय कुछ भी नहीं था। ओके, तो सब छीनने को देखा लेकिन कुछ नहीं दिखाने के लिए, लेकिन जब भी परमेश्वर ने दिया उसके पास सब कुछ आ गया। नो कुशन, नो हॉट फूड, है ना। घर में कैसा सोया रहेगा? क्या आपको लगता है उसको जमीन में सोने के लिए बोला रहेगा उसका पापा मम्मी? अमीर थे, अच्छा गद्दी और सब कुछ दिया रहेगा। यहाँ पे अभी कुछ नहीं। 2.5 महीना उसको बिताना है ऐसा जिंदगी, और आगे जाके भी मालूम नहीं उस लोग वहां पे रिश्तेदार उसको लेंगे कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास आधार कार्ड तो नहीं है ना। जेकब के पास कुछ नहीं था आधार कार्ड। यहाँ से वहां जाने का टाइम वो लेबन का घर गया तो उसको वो बताने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ वो मुंह से जो बोलता है वही है। He had no idea if he will reach his destination alive. उसको ये भी मालूम नहीं था कि वहां पे वो जिंदा पहुंचेगा क्या नहीं। ओके, डर सब कुछ था। हैव यू एक्सपीरियंस दिस एनी टाइम? ये भावना आपको भी आया है? मेरा जिंदगी में तो आया था। ओके, कहाँ दौड़ रहा हूँ, कहाँ भाग रहा हूँ, कहाँ जा रहा है मेरा जीवन? आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल। यू मे बी इन योर होम, you may be in the company of good people or bad people, you may have all the money and still you will be thinking in your heart, where am I running? मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ दौड़ रहा हूँ? और आपके मुंह और आपके काला दिल से भी आप छूट नहीं पा रहे। You are not able to escape from the evil that is there in your heart and bound in your mouth. आपका मुंह में जो शब्द निकल रहा है उसमें से आप छूट नहीं पा रहे हो। ओके, एक याद रखना, यू कैनॉट रन अवे फ्रॉम योर सेल्फ। एक याद रखना, आप अपने आप से भाग नहीं सकते हो, आप दूसरों से भाग सकते हो। यहाँ पे ईसौ से भाग रहा था, लेकिन वो खुद पूरा है, उसके बारे में क्या? वो जहां भी जाएगा उसको मुश्किल ही होने वाला है। वेर एवर ही गोस ही विल हैव द प्रॉब्लम, बिकॉज ही इज द प्रॉब्लम। हम जब तक ये समझते नहीं हमारे जिंदगी में कि हम प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, हम खुद समस्या है। हम दूसरे को समस्या सोचते हैं, लेकिन हम जब तक हम सोचते नहीं कि हम खुद समस्या है हमारे लिए और दूसरों के लिए, तब तक उसमें कुछ उपाय नहीं आ सकता है परमेश्वर का। स्टोन फॉर अ पिल्लो, तकिया के लिए पत्थर। ओके, दैट इज व्हाट ही हैड। घर में सुविधा के साथ रहता था, एट होम ही वॉज यूज्ड टू कंफर्ट। ही मस्ट हैव मिस्ड ऑल दैट ना, उसका तकिया और गद्दी सबको, तंबू, ये सब जरूरतें को वो बहुत याद करता रहेगा। लेकिन वो बहुत थका गया था तो सो गया एनीवे। ओके, उसका पैर दर्द होता रहेगा और वहां पे उसके साथ कोई बात करने के लिए भी नहीं। बहुत मुश्किल ये होता है ना। लॉट ऑफ पीपल हैव नो वन टू टॉक टू, कोई भी नहीं है ना। मुझे भी ऐसा महसूस हुआ, मैं तो मेरा घर में ही रहता था, मेरा भाई बहन माता पिता सब कुछ थे और मेरे दोस्त लोग, हर दिन हम लोग खेलते थे, लेकिन किसके साथ भी मेरा खुद का दिल मैं खोल के बोल नहीं सकता था। ओके, तो नो वन टू टॉक टू। हैव यू फेल्ट दिस वे? क्या आपको भी ऐसा कभी लगा है कि आप अकेला हो, आपको कुछ नहीं कर सकता है? लेकिन ये पत्थर जो है ना, जिसके ऊपर उसने तकिया जैसा, तकिया ही बोलता है ना पिल्लो को, तकिया जैसा वापरा था एक पत्थर को, तो ये सही था। और मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्यों सही था। यीशु मसीह ने बताया था, ये कोई पढ़ सकता है? मैथ्यू 7:24 से 29 ना, मैथ्यू 7:24 to 29, आप हिंदी में जोर से पढ़िए। देखिए, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। कौन बोल रहा है ये कौन बता रहा है? यीशु मसीह बता रहा है। वो क्या बोल रहा है? मेरा बात सुन के उन्हें मानता है, उसके बारे में जो सुनता है और मानता है। दूसरा एक जो व्यक्ति भी है जो सुनता है लेकिन मानता नहीं है, उसके बारे में भी है। ये दो ही प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में, जो सुनते हैं और मानते हैं, और जो सुनते हैं
और नहीं मानते। ओके, सो दोनों के बारे में यीशु मसीह ने क्या बोला वो सुनिए। इसमें जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। ओके, तो उसमें हम क्या सुनते हैं कि ये व्यक्ति सुना और माना जो यीशु मसीह बोल रहा है, तो उसका जीवन किस प्रकार है। एक चट्टान के ऊपर जो व्यक्ति घर बांधता है, तो बाढ़ आता है, बारिश आता है, तूफान आता है, लेकिन वो घर को कुछ नुकसान नहीं होता है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एकदम मजबूत नींव के ऊपर उसका घर बांधा है। तो हमारा जीवन भी चट्टान के ऊपर बांधना बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे परमेश्वर याकूब को बताएगा कि परमेश्वर जो उसके पीछे लगा हुआ है वो एक नींव जैसा एक चट्टान है, और उसको उसका जीवन उस चट्टान के ऊपर स्थापित करना है। ओके, दूसरा जो सुनता है लेकिन मानता नहीं, उसके बारे में क्या लिखा है। 26 परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। तो ये दूसरा व्यक्ति सुनता है लेकिन मानता नहीं, वो भी उसका जीवन बांध रहा है, उसका घर बांध रहा है। कहाँ पे बांध रहा है। बालू में, रेती में। रेती के ऊपर खड़ा रहेगा, खुद नहीं खड़ा रहेगा। हमारा जीवन भी वैसे ही है, चट्टान के ऊपर नहीं बांधा तो हम बालू के ऊपर बांध रहे हैं। तीसरा कुछ जगह नहीं है, या आप चट्टान पे आपका जीवन बांध रहे हो या तो बालू के ऊपर। ओके, तो आप क्या करते हो जीवन में। परमेश्वर का वचन सुनने के बाद वही तय करता है आप कहाँ पे बांध रहे हो। कल्पना में आप क्या सोचते हो उससे नहीं होता है। योर इमेजिनेशन विल नॉट हेल्प। यू मे थिंक यू आर बिल्डिंग अ मैंशन एंड अ टावर बट इट विल कोलैप्स। आप सोचता रहेगा कि मैं इमारत बांध रहा हूं, लेकिन वो गिरने का ज्यादा समय नहीं लगेगा। याकूब को वही महसूस हुआ, उसका सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसको तूफान आया उसका जीवन में तो सब कुछ गिर गया उसका जीवन, है ना। ये सब हम बाद में देखेंगे। क्या आपका जीवन चट्टान के ऊपर बांधा है क्या। ओके, अभी और 5 मिनट हम लेगा, बाद में हम बंद करने वाले हैं। He had a dream in which he saw a stairway resting on the earth with its top reaching to heaven and the angels of God ascending and descending. याकूब ने एक सपना देखा, उसने देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी और स्वर्ग तक पहुंचती है। ओके, जैसा बाप वैसा बेटा बोलते हैं ना, एक कहावत है। कौन सपना देखता था। हम लोग किसी को भी पूछेगा ना, सब जन जोसेफ के बारे में बोलेगा जो याकूब का बेटा था, लेकिन जेकब को भी सपना ही आया, और एक ने आप देखेगा उसका जीवन तो अनेक सपना याकूब को भी आया। तो जोसेफ को भी सपना आता था, लेकिन इसको भी आता था। एक स्टेयरवे, एक सीढ़ी देखा उसने सपने में, और एंजल्स, a busy unseen world. He saw many angels going up, coming down. जो normally we don't see. An unseen world. We don't see angels. But God was giving him a message that there is an unseen world around you. You cannot see it, but it is active. And he was telling that heaven and earth are connected. What is happening on earth has orders from heaven. There are consequences and there are directions. Okay,
तो फरिश्ते या स्वर्गदूत याकूब को दिखा, ओके। और जो दुनिया जो देख नहीं सकता है, स्वर्गदूत वो सब हमको दिखता नहीं आंखों से, वो उसको देखने के लिए मिला इस सपने में, ओके। इसको महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं, ओके। ही रियलाइज ही इज नॉट अलोन इन दिस ड्रीम, है ना। उसको क्या लगता था, अकेलापन। और यहाँ पे बहुत एक्टिविटी चल रहा है ना। यू कैन सी heaven and earth connected, lot of things are happening between earth and heaven. There above it stood the Lord. I am the Lord, the God of your father Abraham and the God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are lying. याकूब ने स्वर्गदूतों को उस सीढ़ी पर चढ़ते उतरते देखा और यहोवा को सीढ़ी के पास खड़ा देखा। यहोवा ने कहा, मैं तुम्हारे पितामह इब्राहिम का परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें वह भूमि दूंगा जिस पर तुम अब सो रहे हो। मैं यह भूमि तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को दूंगा, ओके। तो सिर्फ स्वर्गदूत नहीं है, गॉड हिमसेल्फ वॉज देयर एट द टॉप ऑफ द स्टेयर। परमेश्वर भी वहां था, ओके, उसका सपने में। God was standing at the top of the stairway, so he was there commanding everything that was happening, okay। और वहां से वो सब बता रहा था क्या होना चाहिए दुनिया में। God made it clear that he was the God of his forefather. परमेश्वर ने उसको, याकूब को, इब्राहिम और इसहाक का परमेश्वर करके इंट्रोड्यूस किया, खुद को इंट्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, परिचय दिया, ओके। वो आपको ध्यान से सुनना है। वो बोलता नहीं है कि मैं याकूब का परमेश्वर हूं, इब्राहिम और इसहाक का परमेश्वर। अब तक याकूब उसका जीवन को परमेश्वर जो चट्टान है उसके ऊपर उसका जीवन को स्थापित नहीं किया। तो वो ये जो इब्राहिम और इसहाक का परमेश्वर याकूब का परमेश्वर नहीं था। परमेश्वर कभी झूठ बोल नहीं सकता है। आप कुछ भी सोचिए आपका मन में, मैं परमेश्वर का निकट हूं, लेकिन आप परमेश्वर का निकट नहीं है जब तक आपका जीवन उस चट्टान के ऊपर स्थापित नहीं होता है, ओके। तो बी केयरफुल, गॉड मेड इट क्लियर। लेकिन परमेश्वर ने उसको वादा किया कि जो जमीन के ऊपर आप सो रहे हो ये तुम्हें मैं दूंगा, ओके। व्हाट गॉड गिव्स, ही गिव्स एनीवे। आप परमेश्वर को स्वीकारो या नहीं स्वीकारो। आपको धूप आता है, सूरज का धूप, बारिश गिरता है, आपका थाली में खाना आता है, आपके शरीर में कपड़ा आता है, आपके पैर में जूता आता है, और आपको सब कुछ मिलता है इस दुनिया में। जब तक आपको जीवन है तब तक परमेश्वर आपको संभालता है जैसा और कोई आपको संभालता नहीं। दुनिया आपको छोड़ के जा सकता है लेकिन परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, वही यहाँ पे बताता है। उसको ये भी बोलता है कि मैं तुझे जमीन दूंगा, ओके। तो हमें हमारे लायक से भी ज्यादा गॉड हैज गिवन अस मच मोर देन व्हाट वी डिजर्व। और हम रोते रहते हैं ना, हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, परमेश्वर ने उसको ये दिया, उसको एक बड़ा गाड़ी दिया, मेरे को एक छोटा गाड़ी दिया, या मेरे को गाड़ी ही नहीं दिया। जो कुछ भी है, जो कुछ दिया है हम उसके लायक नहीं है। जो कुछ दिया है, जो कुछ दिया है परमेश्वर ग्रेशियसली को क्या बोलते हैं, दया से, परमेश्वर का दया से ही अपने को मिला है, ओके। क्यों दिया? गॉड हैड ऑलरेडी डिसाइडेड दिस बिफोर ही वाज बॉर्न। परमेश्वर ने तय किया था। जो कुछ हमारा जीवन में समस्या है वो परमेश्वर ने तय किया है। तो परमेश्वर के खिलाफ हम कुछ बोलना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट स्पीक अगेंस्ट व्हाट गॉड हैज गिवन। Your descendants will be like the dust of the earth, and you will spread out to the west and east, to the north and south. All peoples on the earth will be blessed through you and your offspring. तुम्हारे वंशज
उतने होंगे जितने पृथ्वी पर मिट्टी के कण है। वे पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण में फैलेंगे। पृथ्वी के सभी परिवार तुम्हारे वंशजों के कारण वरदान पाएंगे। ओके, गॉड टोल्ड हिम अबाउट हिज डिसेंडेंट। हम लोग कभी सोचते हैं हमारे वंश कैसा रहेगा? डू वी एवर थिंक? है ना, आज जो देश है इजराइल, वो इसका वंश है। ओके, दिस इज द फैमिली ऑफ जेकब। याकूब का परिवार है, तो याकूब का वंश है। अगर 1000-2000 साल के बाद आपका भी वंश वैसे ही रहेगा, एक देश का समान रहेगा। ओके, तो हमारा जीवन जैसा जी रहा है वो बहुत केयरफुली जीना है हमें। ओके, आई एम विद यू एंड विल वॉच ओवर यू वेर एवर यू गो, एंड आई विल ब्रिंग यू बैक टू दिस लैंड। आई विल नॉट लीव यू अंटिल आई हैव डन व्हाट आई हैव प्रॉमिस्ड यू। है ना, परमेश्वर ने वादा किया कि इसी जगह पे मैं तुझे वापस लाऊंगा। ओके, जगह को नाम उसने दिया, हम अभी समय ने इसके लिए छोड़ देंगे। बेथेल यानी परमेश्वर का घर, वो नाम था। ओके, नेक्स्ट वीक हम उसको देखेंगे। लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या बोला? इसी जगह। और पर एक याद रखना, परमेश्वर अभी तक एक भी वादा भूल से क्या बोलते हैं, पूरा नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ है। परमेश्वर परमेश्वर है, वो जो वादा करता है वो होगा। Whatever God promises will happen. Okay, so Jacob will come back to this place, exactly this place, and he will go later on, है ना, we see that he goes to Egypt, है ना, वो मिस्र देश को जाना पड़ता है, एक बड़ा दुष्काल आता है वो जहां पे जीता है तभी। ओके, इसको सब बाद में हम देखेंगे, लेकिन उसके बारे में मैं बोलने के बाद ही मैं बंद करूंगा। ओके, जाने से पहले याकूब कहां पे जाता है मालूम है? बीरशेबा। बीरशेबा से ही वो उसका नया जन्म का यात्रा करता है। तभी उसका उम्र क्या रहता है? मिस्र देश जाने का टाइम, तो 130, 130 साल का उम्र रहता है तभी, है ना। यही व्यक्ति और एक लंबा यात्रा में जाता है, तभी उसका उम्र 130 है ना। और यही जगह से वो शुरू करेगा, बीरशेबा, जहाँ पे उसने ये यात्रा भी शुरू किया था, है ना। वो भी बाद में देखने वाला है हम, क्योंकि हम अभी जेनेसिस का क्विज के लिए तैयार कर रहे हैं ना, तो ये सब उसका तैयारी ही है। ओके, दिस इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। इवन I remember, like, you know, we had studied Genesis maybe 5-6 months back. हम लोग उत्पत्ति को 5-6 महीना का पहले ही पढ़ा रहेगा, लेकिन अभी दोबारा पढ़ने के समय मुझे बहुत खुशी लग रहा है, क्योंकि बहुत कुछ नया नया चीज सीखने को परमेश्वर दे रहा है। ओके, इट इज सो इंटरेस्टिंग, मेनी थिंग्स वी डिड नॉट कनेक्ट। बहुत सारा चीज जो पहला कनेक्शन लगाने था, वो अभी मेरा दिमाग के अंदर कनेक्ट हो रहा है और उसका अर्थ समझ में आ रहा है। ओके, तो हम लोग अभी इसको एंड करने वाला है। भाई प्रार्थना करके एंड करना, और खाना के लिए भी